Hello young physics learner, this is Bhavna physics class and this is my lecture number 5 under the unit magnetic effect of electric current. We have discussed about the trajectory of charged particle. We have discussed about the direction of magnetic field, magnetic force and current with the help of many rules that can identify the directions. And we have also discussed about the Lorentz force. Okay, and we have compared the Lorentz force with the electrical force. So here we are going to discuss about the magnetic field magnitude with the help of very important, very beautiful law, that is Biot-Savart law. He was a French physicist. He had discovered this magnitude of magnetic field due to a current carrying element by doing various experiments and by comparing the magnetic field with the electric field origination using the Coulomb's law. Okay, you know that magnetic field can be originated with the help of current carrying wire. This was observed by Oersted. And electric field can be originated by static charge. But we can find out the magnitude of magnetic field with the help of Biot-Savart law. Okay, so let's start the today's topic, Biot-Savart law. And also in this class we will compare the electric field as well as magnetic field. We will compare the constant used in the electric field and the constant that is discovered in magnetic field. Formula. Biot-Savart law, we have to find out the magnetic field due to this current carrying element. This is a wire, okay, and current is flowing through this wire. यहाँ पर इस वायर को ऐसे समझ लो कि ये वायर AB वायर है और इस वायर में करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है। अब एलिमेंट, इस वायर का हम एक स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन। यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ ने स्मॉल पोर्शन के लिए इसलिए निकाला मैग्नेटिक फील्ड ताकि हम उसे इंटीग्रेट करके फुल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वायर हम निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक एलिमेंट ले लिया वायर का और वो एलिमेंट की वैल्यू है DL। सो DL इज एन एलिमेंट। अब ये एलिमेंट अगर करंट से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। सो दिस IDL is called current element, and remember this, it is a vector quantity. Current एक particular direction में flow कर रही है। Current is a scalar quantity, but जब उसके साथ में ये displacement भी count हो जाएगा जो current element की form में हम ले रहे हैं, then it will become a vector quantity. So here IDL is the current element. अब हमें सपोज करो कि यहाँ इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो हमने इस करंट एलिमेंट से, हम क्योंकि करंट एलिमेंट हमने इसलिए लिया था कि इसमें एक स्मॉल पॉइंट ले सके, बहुत छोटा सा है एलिमेंट, तो उस पर क्या होगी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स इतने क्लोज बाई हैं कि किसी भी एक पॉइंट से अगर हम P पॉइंट की डिस्टेंस को लेंगे तो वो सारे पॉइंट से ऑलमोस्ट उतनी ही डिस्टेंस आएगी। यही पर्पस था करंट एलिमेंट लेने का। तो यहाँ पर हमने इस करंट एलिमेंट की किसी भी एक पोर्शन से P पॉइंट तक की डिस्टेंस एज्यूम कर ली एंड दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम R वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। सो हियर R इज द पोजीशन वेक्टर। दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। R इज पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में? इस करंट कैरिंग वायर के रिस्पेक्ट में। सो करंट कैरिंग वायर के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का जो पोजीशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, may also be called as distance between the wire and the point. So here this is position vector or distance. Okay. Next, the angle between the current element. अब current element का एक particular direction है, ऐसा नहीं है कि आप ये एंगल ले लोगे, ये एंगल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि current element का डायरेक्शन तो ऊपर की साइड है, तो जिस डायरेक्शन में current element है उस डायरेक्शन से
लेकर के पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम करते हैं, रिमेंबर दिस, ये जितने भी पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं भी इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना हो, बायो-सेवर्ट फार्मूला को, तो आपको पता हो कि थीटा एंगल है कहाँ से, ठीक है। सो दिस वन इज थीटा विच इज फ्रॉम द करेंट एलिमेंट which is in between the current element and the position vector r. So this is theta. Got it? अब इसमें इतने सारे टर्म्स हमें मिल चुके हैं, ये थीटा भी मिल गया है, थीटा हमें पता चल गया दैट एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट, दैट मीन्स आईडीएल, दिस इज एंगल बिटवीन आईडीएल एंड पोजीशन वेक्टर r, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। अब बायो-सेवर्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बेसिस पे क्या आइडेंटिफाई किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट आईडीएल। स्मॉल, अगर क्योंकि हमने डीएल लिया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं डीबी। आपको डीबी और डेल्टा बी में भी डिफरेंस पता होगा, ये डीबी है और ये है डेल्टा बी। क्या डिफरेंस है दोनों में? डेल्टा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज, ठीक है। d इज स्मॉलर डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज। तो डेल्टा और d में डिफरेंस ये है कि डेल्टा इज द बिगर डिफरेंस एंड d इज द स्मॉल डिफरेंस। इसको हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। फर्दर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यू नो अबाउट इट। सो dB is the magnetic field is due to this small current element. This dB is directly proportional to current element. कैसे पता चला? ऑब्वियसली आप देखो कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है, यानी उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं। और स्ट्रेटली जो ऑब्जर्व किया था वो क्या था कि जो करंट है वो जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा आएगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। सेकेंड इज it is directly proportional to the sine of angle between current element and position vector. So this one is directly proportional to sine theta, and it is inversely proportional to the square of the position vector. Okay, that means distance between the point and the current element. यहाँ पर ये r वैल्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी ग्रेटर होती जाएगी, जितना ये पॉइंट दूर होता जाएगा सोर्स से। सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? ये करंट कैरिंग वायर। तो सोर्स से ये P पॉइंट जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जितनी डिस्टेंस पर जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर उतनी कम होती जाएगी। सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन आई थी ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है किससे? कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स भी डायरेक्ट लॉ था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर भी वो ऑब्जर्वेशन सेम फॉर्म में आ रही है। इस पूरे डिपेंडेंस फैक्टर्स को अगर हम एक फॉर्मूले में रखेंगे then it will come as dB is proportional to I dl sin theta divided by r square, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए बायो-सेवर्ट ने वैसा ही कंडीशन अप्लाई किया जैसा कि कूलॉम्स ने अप्लाई की थी। कैसी कंडीशन थी? इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने के लिए इन्होंने एक फैक्टर दिया म्यू नॉट ओवर 4 पाई। दिस इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट एलिमेंट। सो दिस इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट आर द basic dependent factor originating the Coulomb's बायो-सेवर्ट formula। तो यहाँ पर dB is equal to mu naught over 4 pi IDA sin theta over r square RI. So this one is the बायो-सेवर्ट formula, and by this formula we can calculate the magnetic field due to current carrying wire. वो वायर किसी भी शेप का हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, वो स्ट्रेट वायर हो, वो सर्कुलर वायर हो, हम उस वायर के थ्रू, करंट कैरिंग वायर के थ्रू किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बायो-सेवर्ट लॉ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद दिस
वेक्टर फॉर्म ऑफ dB, इससे पहले सबसे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, ठीक है, आई एस सच रखा और यहाँ हमने रख दिया dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ऐसा क्रॉस क्यों लेकर के आए हैं, यहाँ पे देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यहाँ पे हमने r को यूनिट वेक्टर क्यों रखा, क्योंकि वेरिइंग टर्म तो जो आ रहा है वो पोजीशन ऑफ द पॉइंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में कूलॉम्स फॉर्मूला जो आया था उसमें हमने वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से यहाँ पर r यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया है, वहाँ पर कोई क्रॉस नहीं आया था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो अब इनके बीच में जब साइन थीटा आएगा तो वो थीटा एंगल किसके बीच में होगा, dl एलिमेंट के बीच में और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r के बीच में, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर r, यहाँ पे हमने वेक्टर r कर दिया डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r क्यूब, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मॉड होता है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे वेक्टर रख दिया, एक मॉड आ रहा होगा क्योंकि क्रॉस में स्केलर वैल्यू को हम अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इस मॉड को यहाँ पर नीचे की साइड में कर लिया बिकॉज ये डिनोमिनेटर में ही था। सो दिस इज द ओवरऑल वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ओके, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, जिसमें हम डिफरेंट शेप के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको यूनिट पहले ही बताया था जब मैंने F इज इक्वल टू QED यानी लॉरेंज फार्मूला बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स होती हैं, क्योंकि ये फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखते हैं, सो वन गॉस टेस्ला रिप्रेजेंटेड बाय T, अनदर इज गॉस विच इज द CGS यूनिट, गॉस इज CGS यूनिट, दिस वन इज टेस्ला। नोट डाउन कर लो अगर आपने पहले नहीं देखा है, या तो मेरा लेक्चर को देख लो और उसमें मैंने आपको बताया था लॉरेंज फोर्स में कि यूनिट्स कौन कौन सी आ सकती हैं। और भी दो यूनिट्स हैं यहाँ पर, वन इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट एक फॉर्मूले के बेसिस पर आती है, वो फार्मूला भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक आपकी लॉरेंज फोर्स फार्मूला के बेसिस पे न्यूटन्स, F इज इक्वल टू क्या था, QVB, B इज इक्वल टू F ओवर QV। सो Q के लिए क्या आ जाएगा, कूलॉम, और V के लिए आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज अनदर फार्मूला फॉर अनदर यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की आप ये यूनिट्स रख सकते हो, जनरली टेस्ला यूज होती है, जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वहाँ पर टेस्ला यूनिट यूज हो रही होगी। टेस्ला और गॉस में रिलेशन भी है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है 0.3 गॉस की। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्मॉल होती है, यू कैन अज्यूम इट कि 0.3 गॉस इज वेरी स्मॉल यूनिट। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड फार्मूला। तो अब हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इस कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको यहाँ पर बायोसेवर्ट, ये तो बायोसेवर्ट के अकॉर्डिंग्स में है, कूलॉम्स लॉ अगर देखो, ठीक है, एक्सप्लोर करना है हमें फिजिक्स में। कूलॉम्स लॉ में भी जो कांस्टेंट आया था वो आया था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा क्यों है कि हर एक कांस्टेंट में 4 पाई टर्म्स यूज हो रहा है, यहाँ पर भी 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको उसमें कूलॉम्स लॉ फॉर्मूले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर भी म्यू नॉट ओवर 4 पाई में आप देखो 4 पाई टर्म्स आ रहा है। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी
ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा था उनसे ये क्वेश्चन है कि ये 4 पाई टर्म्स है, ये 4 पाई टर्म्स आता क्यों है। ठीक है, तो उसका रीज़न भी है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको क्वेरी है तो वो ये रीज़न आप मेरे कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको कूलॉम्स फोर्स के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोडक्शन बताया था। सो म्यू नॉट, चलो म्यू नॉट पे स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती क्या है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो है जिसमें हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट द परमिशन यू नो permission given to electric field lines to move in free space। अब ऐसा क्यों बोला गया कि permission given to electric field lines, ठीक है। उसी तरीके से permeability को भी हम डिफाइन कर सकते हैं that permission given to magnetic field lines to move in free space, that is called permeability। इसका अलग नेम रखा गया है, इसका अलग नेम रखा गया है, तो वो डिफरेंस क्यों है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपके पास एक बाइक है, आप उस बाइक में राइड कर रहे हो। ठीक है, एक प्लेन रोड है, बिल्कुल प्लेन, उसमें कोई क्राउड नहीं है, कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप इजीली मूव कर जाओगे, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा बाइक के पाथ पे। ठीक है, पर अगर आप वही बाइक किसी क्राउडेड रोड में चला रहे हो तो क्या उतनी स्पीड रह पाएगी जितनी स्पीड पहले थी, या वही फ्लो रहेगा जितना कि आपका प्लेन रोड में चलने पर था। नो, नहीं होगा। तो उसी बाइक के स्पीड को आप एज्यूम कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम उसमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर भी हम फ्लक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं दीज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और आपने ये 10th क्लास में पढ़ा भी था कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, एंड इन साइड साउथ टू नॉर्थ, दीज आर द क्लोज्ड कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट द क्लोज्ड कर्व। बहुत सारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, अगर इसी एक क्लास में डिस्कस किया जाए तो आई थिंक कि एक दिन पूरा निकल जाएगा, बट ये टॉपिक फिनिश नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव कर रही हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज जस्ट लाइक द राइडिंग द बाइसिकल ऑन द रोड। अगर फ्री स्पेस है जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है तो वो ईजिली मूव कर रही होगी। ठीक है, बट ईजिली मूव करने पर भी उनके में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनकी अपनी एक मैक्सिमम स्टेमिना, जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से, जिस सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है उस सोर्स से जो फील्ड लाइंस निकल रही है, हम एज्यूम कर पा रहे हैं वैसे कि जो फील्ड लाइंस निकल रही है उस सोर्स से, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से, तो वो डिपेंड, उसकी स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है कि पॉजिटिव चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स पर भी डिपेंड कर रही होती है, पावर ऑफ सोर्स पर भी डिपेंड कर रही होती है। उसी तरीके से सेम इज द केस फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस सोर्स से ओरिजिनेट हुई है वो सोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमिटिविटी होती है इसका मीनिंग यही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसमें से निकली हैं, मूव कर रही है फ्री स्पेस में, तो ये कितने फ्रीली मूव कर पा रही हैं, इनको कितनी परमिशन दी हुई है सोर्स के थ्रू, स्पेस के थ्रू। सोर्स और स्पेस दो ही चीज़ें होती हैं, तो सोर्स के थ्रू और स्पेस के थ्रू कि ये इस स्पेस में मूव कर पाएँ। सो दैट इज corresponding to the permittivity of free space. I think this point is very clear to you. And permeability, in the same sense we can say that मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक करंट कैरिंग सोर्स है, करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड जनरेट हो रही होगी
वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो कितनी स्ट्रांग है, वो फ्री स्पेस में कितनी इजीली मूव कर पा रही है। एबिलिटी, तो परमिएबिलिटी वर्ड और यहाँ पे परमिटिविटी वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैंने आपसे अराइज किया था 4 पाई का, उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रही हूँ। ठीक है, 4 पाई, यहाँ पर भी 4 पाई, तो 4 पाई आपको पता है कि ये सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, आपने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये होता है एंगल जो 2 डायमेंशनल प्लेन में बनता है। ठीक है, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग होता है सरफेस एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब एक एंगल में आर्क की बात की जाए तो एक आर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 पाई आर। अगर आर रेडियस है तो आर्क की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस इज आर। सो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 2 पाई विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सरफेस एरिया, अगर पूरा सर्किल कवर अप करता है सरफेस एरिया, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर में बनता है, मैं ये एक सॉलिड स्फीयर बना रही हूँ और इसमें ये कोन है। ठीक है, तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं ओमेगा एंगल विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सरफेस एरिया विच शुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4 पाई। जब यहाँ पर देखो सॉलिड एंगल है 4 पाई, प्लेन एंगल है 2 पाई, 2 पाई में 360, 4 पाई का मतलब 720 हो जाएगा ना 720 यहाँ पर। तो अब मीनिंग क्या हुआ कि जो एंगल होता है वो तो 2 डायमेंशनल प्लेन में, लेकिन ये जो फील्ड लाइंस निकल रही होती है ना, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में निकल रही होती है। एक अगर वायर ये रखा हुआ है तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। वो कैसा स्पेस हो गया 3 डायमेंशनल। अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, दिस वन इज द चार्ज पार्टिकल, केवल आपको ये पोर्शन देखना है, चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, स्टैटिक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में निकल रही होंगी। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब सॉलिड एंगल, जो जिस पूरे स्पेस में जा रही होगी, पूरे यूनिवर्स में जा रही होगी, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है। वैसे तो 4 डायमेंशन भी आपको पता ही है आती है, वो टाइम से कनेक्टेड हो जाती है, स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 4 पाई। इसका मतलब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आया है 4 पाई का, ये कांस्टेंट टर्म दोनों में 4 पाई और 4 पाई आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फील्ड लाइन जिस भी सोर्स से जनरेट हो रही है, चाहे वो करंट कैरिंग वायर से यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल से जनरेट हो रही हो या स्टैटिक चार्ज पार्टिकल से जनरेट हो रही हो, बट ये जो फील्ड जनरेट हो रही है, ये जो लाइंस जनरेट हो रही हैं, ये सारे स्पेस में जा रही हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रही हैं। तो जब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएंगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 पाई, एंड दैट इज व्हाई दिस 4 पाई इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। So I hope this is very interesting topic for you and it is clear to you. चलो हमने कांस्टेंट के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को रिलेट करते हैं। So we are now discussing about origination of electromagnetic फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते हो। सारे आगे के टॉपिक, पूरी बुक आपकी, जो नेक्स्ट टॉपिक जितने, द नेक्स्ट टॉपिक्स आर व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा यूनिट स्टार्ट होगी। उसके बाद आपका आएगा लाइट, लाइट मीन्स ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी पूरी। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। So this is the most fruitful and most useful topic, can't skip it. So here this one is magnetic field indication, this one is electric field indication. अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को आपको बता देती हूँ। इसकी वैल्यू जो आती है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकली थी, इसकी वैल्यू आई थी 10⁻⁻⁷, ठीक है।
म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकली थी और इस वैल्यू को हम अभी यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने में। इस पूरे टर्म्स की वैल्यू क्या है, ये आपने पढ़ा था पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट साथ में रख सकते हो, यहाँ पर भी यूनिट निकाल लोगे, यहाँ पर भी यूनिट निकाल लोगे। यूनिट भी जरूर चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि ओवरऑल यूनिट क्या आने वाली है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या टर्म आता है। हमने क्या किया कि ये टर्म म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया किससे, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को जब हमने डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में हम इनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। हमने रख दिया 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पर देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट, ये क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवीजन में आ जाएगा 4 पाई। ये 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो गए। यहाँ राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पर आ रहा है 1 ओवर 9 इंटू 10 टू द पावर -7 को नीचे लाएंगे तो +7, 9 + 7 16। सो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। अब ये जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ये बहुत नोन टर्म है सभी के लिए, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें मिल जाती है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। दैट मीन्स इस इनडायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², where c is what? It is speed of light। अब यूनिट कैलकुलेट करके चेक कर लेना। यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई की यूनिट कहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, बायो-सेवर्ट फॉर्मूले से। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करोगे, कूलॉम्स फॉर्मूले से। जब आप उनको कैलकुलेट करोगे तो आप देखना कि रिजल्ट जो आ रहा होगा वो 1 ओवर c² की यूनिट ही आ रही होगी, यानी 1 ओवर मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको श्योर है कि रिजल्ट मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि अगर एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड की कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है, एंड दिस स्पीड ऑफ लाइट इंडिकेटिंग दैट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस C indicate that combination of electric field and magnetic field that results as a electromagnetic wave, and speed of light is an electromagnetic wave। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम भी आगे पढ़ना है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सो दिस इज C। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो एक पहले फॉर्मूला हम लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर में डिफाइन किया था, V = E/B। ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ओरिजिनेशन को बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तब हमें स्पीड मिल रही है। यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम E और B की वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड मिल रही है वेलोसिटी सेलेक्टर में, यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल रही है, यहाँ पर स्पीड ऑफ पार्टिकल मिल रही है, पार्टिकल की स्पीड, यहाँ पर हमें लाइट की स्पीड मिल रही है। वो पार्टिकल अगर फोटोन है तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, यहाँ पर ये ऑलरेडी फोटोन है। और आप नोट कर लेना, अभी मैंने रब कर दिया है, जहाँ पहले था उसमें आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम यहाँ कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनडायरेक्टली हम इसे कह सकते हैं दैट कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड हियर बायो-सेवर्ट लॉ। तो हमने अभी इससे पहले कांस्टेंट की कंपैरिजन कर ली और उसमें रिलेशन निकाल लिया। अब हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ में कंपैरिजन करेंगे। इनडायरेक्टली इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपैरिजन भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो एक साइड में मैं लिख लेती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी साइड में लिख लेती हूँ मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी आप चाहो तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। सो पहले हम लेते हैं सिमिलैरिटी, फर्स्ट वन सिमिलैरिटी दोनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स से जनरेट होती है वो है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड जिस सोर्स से जनरेट होती है वो है मूविंग चार्ज। चार्ज और मूविंग चार्ज में कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको साइड में करके बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4 पाई IdL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। इसको dV ले लो क्योंकि dl रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में ही आप देख लो, तो यहाँ पर जो IdL है दिस वन इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो Q है वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही सोर्स में स्क्वायर टर्म नहीं है, यानी यहाँ पे Q स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आइडियल स्क्वायर नहीं है। तो जब स्क्वायर टर्म नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर सोर्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक सोर्स नहीं है, क्वाड्रेटिक सोर्स का मतलब है जहाँ पर स्क्वायर टर्म आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक लीनियर सोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस सोर्स से जनरेट होती है वो सोर्स कैसा होता है, लीनियर सोर्स। हियर द सोर्स इज Q and this is also linear source originated from the linear source and that is IdL, ठीक है। तो ये हो गई सिमिलैरिटी दोनों में। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप इसको ये सिमिलैरिटी में रख सकते हो that magnetic field and electric field both are inversely proportional to the square of distance. Third one, both obey the principle of superposition. Superposition principle obeys. यहाँ पर भी सेम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबेज, ठीक है। तो दोनों में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही सिमिलैरिटी शो कर रही है इन फैक्टर्स के बेसिस पर, ओके। नाउ कम टू डिससिमिलैरिटीज, इसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डिससिमिलैरिटी। तो डिससिमिलैरिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सोर्स से जनरेट हो रही है वो एक स्केलर सोर्स है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सोर्स से जनरेट होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जिस सोर्स से जनरेट हो रही है वो आइडियल वेक्टर सोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिससिमिलैरिटी है, ये स्केलर सोर्स से जनरेट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स से जनरेट हो रही है। Second point, electric field is in the direction of distance. कैसे, ये एक पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के बेसिस पे इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जिस डायरेक्शन में रेडियस है r वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग विद द रेडियस डायरेक्शन, रेडियस या डिस्टेंस डायरेक्शन हम इसे कह सकते हैं, तो इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस है। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में आती है और मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर वेक्टर आता है। तो क्रॉस आर वेक्टर आने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं दैट सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, तो सी वेक्टर ए और बी के डायरेक्शन में नहीं पॉसिबल है, सी वेक्टर ए और बी का जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर आता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर dp जो है वो आइडियल क्रॉस r के परपेंडिकुलर होएगा, आइडियल क्रॉस r जिस भी प्लेन में होगा, अगर वो xy प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड z प्लेन में आएगी, अगर वो y और z प्लेन में है तो x एक्सिस पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आइडियल क्रॉस r z और x प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में आएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर प्लेन, ठीक है। सो हियर सेकेंड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर। जो भी आप लिखना चाहो, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि पोजीशन वेक्टर क्यों कह रहे हैं इसे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द टू. This is overall the dissimilarity between the electric field and magnetic field. So I hope that this point is clear to you, and this is the introduction of Biot-Savart law and the related factors. So that's all for today, and in my next class I will come with application of Biot-Savart law. Keep learning with me. Thanks.